Hi guys, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and here to give you a very important tip of how to prepare for your OET exam or what to do in the morning for the OET exam. So I would say video like this must be listened 2 or 3 times. I'm telling you again what to do in the exam. So listening to this video many a times, even before your exam, on the exam day, before the exam day, the night you have. So means if you have an exam tomorrow, this is the thing that you need to do today. So you need to make sure when it comes to the reading part, listening, obviously you should listen to some recording. कोई भी एक paragraph, any one paragraph you should listen, so to warm yourself up. So you have a good calm sleep. Now your subconscious mind is active, but when you get up in the morning, you want to do a little warm up. Like in every games, like if you play cricket or you play anything, then you have to warm up. So listening to one paragraph, don't do any questions. Listening to one paragraph will give you lot of warm up. Don't do questions, only just listening to paragraph. That's it. Second thing, for the reading part, when you go in your reading exam, after listening, you will get your reading exam. You will have the part A. Out of the first 7 questions, do only 4 or 5 questions in which you have to tell in which paragraph is the answer. A में है, B में है, C में है या D में. वो सिर्फ हेडिंग पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि सिम्टम्स किस में है, ट्रीटमेंट किस में है. तो जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे ट्रीटमेंट का नाम दिया होगा, ऐसे दिया होगा कि आईवी फिक्सेशन, ऐसे वर्ड्स दिए होंगे, या दिस मेथड, या फिर दिया होगा इंसुलिन, ऐसा कोई भी वर्ड जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट वाले पैराग्राफ में मिलेगा. तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. तो कोई 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ हेडिंग से हो जाएंगे एबीसीडी के. दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. देन बाय द टाइम यू रीच टू क्वेश्चन नंबर 8, 8 से लेके 20 में भी जो आसानी से आपको मिल रहे हैं, 8 से लेके 20 क्वेश्चन में भी आपको रीडिंग पार्ट ए में ये पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ट्रीटमेंट बेस्ड है. तो अगर आप पहले 7 क्वेश्चंस को हेडिंग के हिसाब से करोगे, तो 8 to 20 क्वेश्चंस में भी आपके दिमाग में ये पक्का रहेगा, इट वुड बी डेफिनेटली इन योर माइंड कि ये ए में दिया, ये बी में. तो आपको स्किमिंग और स्कैनिंग में इजी रहेगा. दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू implement in the reading part A. Subscribe the channel right now if you have not, and please contact us for the best OET coaching. Our contact number is 76967342256. Taking it further, again please listen to this video 5 times. It is very important. Again I'm telling you, क्योंकि we listen to expected OET exam, we listen to sample of OET speaking, sample of OET reading, but this is the most important instruction I can give you, how to use your mind on the exam day. Reading part A, out of the 7 question, only 4 or 5 questions to save time in the first round, क्योंकि सिर्फ 15 minutes you will have. This is the most important instruction. और बाकी 3 क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्योंकि बाय द टाइम आप 8 to 20 क्वेश्चंस करोगे, आप पैराग्राफ के अंदर चले जाओगे. तो जो 3 क्वेश्चंस आपने पहले 7 छोड़े होंगे, अब जब आप उनको जाओगे, आप आराम से बता पाओगे ये तो बी में दिया था, ये तो सी में दिया था, ये तो डी में दिया था. तो वो क्वेश्चंस तो लास्ट में हो ही जाएंगे पक्का. और 8 to 20 क्वेश्चंस में भी जो क्वेश्चन पढ़ते आपको पता लग रहा है ये इस पैराग्राफ में है, और आसानी से आपको वो वर्ड मिल रहा है पहले राउंड में, वो करने हैं. तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन द फर्स्ट 7 minutes ऑफ द रीडिंग पार्ट ए, आपके कम से कम 12 to 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 हो जाने चाहिए. अब आपके पास 8 मिनट है और सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन है. आराम से करो, आपको लगेगा ही नहीं टाइम की कमी है. Then in the reading part B, again the most important instruction, don't do any question which is difficult in the first round. So जो आसान क्वेश्चंस हैं जो आपकी रेंज में है, अगर आप 25 to 30 मिनट्स में 12 या 13 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, तो इफ यू डू 12 और 13 क्वेश्चंस, देन इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आपके 12-13 मार्क्स पक्के हो गए, रीडिंग पार्ट ए में लगभग 17-18 पक्के हो गए, तो 30 मार्क्स तो वैसे ही हो गए आसान क्वेश्चन से. अब जो मुश्किल क्वेश्चंस थे उनमें से अगर आप 5 भी ठीक कर पाए, 4 भी कर पाए, तो आपके 380-390 मार्क्स आएंगे रीडिंग में. मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. देन इन द राइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, पर्पस को ढूंढो और उसी को डाटा में लिखो
बाद के पैराग्राफ्स में वही डाटा में लिखो जो आपको अटमोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है। जो भी राइटिंग डाटा में मुश्किल लग रहा है प्लीज छोड़ दो, मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। सेम फंडामेंटल अप्लाइज इन स्पीकिंग। कोई भी पॉइंट जो आपको स्पीकिंग में मुश्किल लग रहा है उस पॉइंट को मत बोलो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। या फिर उसको बहुत कम बोलो, जैसा दिया है वैसे बोलो, नहीं तो छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि 3-4 पॉइंट छोड़ दो, एक आधा पॉइंट जो ज्यादा ही तंग कर रहा है उसे छोड़ दो। ऐसे ही राइटिंग में राइट ओनली द थिंग। आपके 180 टू 200 वर्ड्स, अगर हर वर्ड पे आपने कंट्रोल से लिखा है, हर वर्ड पे आपकी ग्रामर ठीक है, आपने पर्पस ठीक बनाया, तो 350 पक्का आएंगे। वो एक लाइन जो आपको समझ नहीं आ रही थी और आपने डर के मारे, आउट ऑफ द फियर यू हैव रिटन दैट लाइन, इट कैन डिडक्ट योर मार्क्स, सो डोंट राइट इट। आपको एग्जामिनर मार्क्स देता है जो आपने लिखा है, पर्पस, और जो आपको समझ आएगा उसको आप अरेंज भी कर पाओगे लेटर में। तो ये वो स्ट्रेटेजी है टू पास योर ओईटी एग्जाम इन द इजीएस्ट वे। प्लीज लिसन टू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड आई समटाइम्स गेट रियली डिसहार्टन टू सी जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ और उस पे कंपेरेटिवली व्यूज कम होते हैं टू एक्सपेक्टेड लेटर। इस वीडियो को तो आपको डेली सुनना चाहिए रात को सोने से पहले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, कि सबकॉन्शियस माइंड को डेली ये समझाना है कि स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। लिसन टू दिस वीडियो जब भी आपको टेंशन होती है, डर लगता है, डेली सोने से पहले, क्योंकि सब ये भूल जाता है सबकॉन्शियस माइंड पेपर में जाके, क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको बार बार इस वीडियो को सुनना पड़ेगा ताकि ये पेपर में इंप्लीमेंट हो सके। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256 and subscribe the channel if you have not. Like this is my additional effort. ऐसा नहीं होता कि जिन्होंने सब्सक्राइब करना होगा कर लिया होगा, शायद पहली बार भूल गए हो, एक बार और कहना सही रहता है। It's always good to repeat good things. So there is nothing wrong with it. Okay, take care. Thank you.